दिल्ली एमसीडी के नाम काले कारनामे सामने आने लगे हैं। जी हां, दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक प्रेस वार्ता के दौरान रोहिणी जोन में बिल्डर माफियाओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल रोहिणी जोन में अनधिकृत निर्माण की गतिविधियां प्रकाश में आई हैं, जिसमें नई दिल्ली के पंजाबी बाग नांगलोई उप रजिस्ट्रार कार्यालय की मिलीभगत C7/1 मियाँवाली नगर पश्चिम बिहार की मिलीभगत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार सर, सभी प्रेस मीडिया कर्मी का हमारे परिवार की तरफ से, बब्बर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली नगर निगम में किस प्रकार भ्रष्टाचार, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस है, SGM पंजाबी बाग, हमारी एक बिल्डिंग है सर जो C7/1 मियाँवाली नगर, C7/1 मियाँवाली नगर में एक बिल्डिंग है जिसको जो अनऑथराइज बनी हुई है, जिसको MCD ने भी बुक किया हुआ है, उसके बावजूद भी उसके अंदर काम चल रहा है, उसके बावजूद भी पानी की लाइन चल रही है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की लाइन को काटा हुआ है। वो बिल्डिंग बुक है, बिल्डिंग बुक होने का मतलब होता है कोई रजिस्ट्री उसकी नहीं हो सकती, लेकिन नांगलोई रजिस्ट्रार के पूरी गुंडागर्दी के कारण वो 3 फ्लोर बिक चुकी हैं। आगे की जानकारी देने के लिए मेरे साथ बैठे हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। Of builder mafia authorities nexus prevalent in MCD and all other concerned authorities. I am the representative of the legal heirs of the property, those who have gone from pillar to post complaining about what all is happening is all illegal, but there was nobody to look at to the key what actually they wanted. So we are forced to expose this kind of illegitimate ways where the authorities are clearly making money, and the builder mafia authorities nexus has to be exposed, and it is the duty of you people of the fourth estate to kindly make it public and show it to the people that what kind of blatant corruption is happening in Delhi. As they say, justice delayed is justice denied. So we would require all of you to kindly take it to that limelight where they understand the plight of the people. The PIO, people of Indian origin who are based in Australia, who is the legal heir of the property, or jo kuch hua, that is something you cannot even imagine. On the side, that property has been booked, and it is, and in spite of that, they have gone ahead, the property has been sold, it has been registered, and in spite of telling to the MCD to come and do the demolition, they came, they just did the cosmetic work and they went away. So we request you, please kindly make it to such a large extent that the people should know, the higher authorities should know what action they have to undertake, and this blatant use of money power, muscle power has to be stopped at any cost. Sir, this property was booked because the hire, there were 4 hires to this property. One of the legal hire was not aware, and the other 3 hires in conveyance with each other and in conspiracy with the and in conspiracy with the authorities, they sold the property without the other 4th hire, who is the major complainant, was not aware what all has been done. So it was but natural for anybody to feel offended when who has been denied of their legal rights. So that was the reason this property was booked. करते समय इसकी रिपोर्ट में लिखा था कि ग्राउंड फ्लोर से लेके टेरेस तक जो है अनऑथराइज्ड है, क्योंकि इसमें 100% कवरेज थी, हाइट ज़्यादा थी और एक्सेस कवरेज भी थी। लेकिन इसको 16/9/2022 को बुक करने के बाद उन्होंने कभी कोई प्रॉपर एक्शन इस प्रॉपर्टी के खिलाफ लिया नहीं, तो हमें इसके लिए हाई कोर्ट में रिट लगानी पड़ी। तो रिट में फरवरी में ऑर्डर हुआ कि इसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट में बहुत लटकाते इसको कुछ दिन पहले एक एक्शन लिया कि इसकी पार्किंग में जाके 4 फुट की दीवार पर पंक्चर कर दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि जब MCD ने ये बिल्डिंग बुक की तो MCD ने किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, जैसे कि सब रजिस्ट्रार
वाटर सप्लाई या BCS, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि इनको इन्फॉर्म करना होता है। मैं खुद गया और मैंने 26/9 को सब रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया और SDM बन के लिए बुक है, तो इसको आप जब भी इसकी कोई रजिस्ट्री करें तो इसको इस पर बुक का रिमार्क दें। लेकिन बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, मेरे को जब MCD से इंफॉर्मेशन आएगी मैं तब करूँगा। मैंने MCD से ये इंफॉर्मेशन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में या उनके पोर्टल पे अपलोड कराने के लिए विजिलेंस कमिश्नर से लेके LG तक को कंप्लेंट की, DC को कंप्लेंट की, लेकिन बट इन वेन, इन्होंने कुछ नहीं किया। और इसके बाद 26/9 को जब मैं इन्फॉर्म कर चुका था रजिस्ट्रार को, उसके बाद इन्होंने 3 रजिस्ट्रियाँ कंटिन्यूसली कर दी और किसी भी रजिस्ट्री, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, किसी के ऊपर भी प्रॉपर्टी बुक का रिमार्क नहीं है। MCD और सब रजिस्ट्रार का ऑफिस जो ये है ये कर रहे हैं। इसमें जो परचेजर्स ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा वो, लेकिन MCD इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। वो इस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस की इतनी हिम्मत है कि वो इसकी रजिस्ट्रीज करते जा रहे हैं। अगर वो अवेयर नहीं है तो मैंने उनको अवेयर किया, मैंने उनको बताया। अगर उसके बाद भी वो अवेयर नहीं है तो या तो MCD करप्ट है या फिर रजिस्ट्रार, और दोनों करप्ट है। इसको अपलोड करें ताकि आगे अगर कोई परचेजर आता है तो वो सफ़र ना करे। इनमें तो 2-3 इनोसेंट परचेजर्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं था कि बिल्डिंग बुक है। हालांकि हमने उनको बताया था, लेकिन हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास तो वो SR पे करेंगे। तो वो आगे इसको अपलोड करे और जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, कैसे बिजली का कनेक्शन डिसकनेक्शन क्यों नहीं करते हो और फायर क्यों नहीं एक्शन लेता, वहाँ पे लिफ्ट चल रही है। Everything has been reduced. So you please understand and try to realize कि where should a common man go if you are being harassed, where there is a blatant use of money, there is a blatant use of corruption, power, and there is a conveyance and build-up का एक nexus है. It has to be exposed. It has to come to the limelight of the people कि what kind of illegitimate work is being done in Delhi. वो आज मेरे साथ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, कल के इनके साथ भी हो सकता है। तो एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ एज दी फोर्थ स्टेट, जैसे प्रेस को बोला जाता है, इट बिकम्स योर मॉरल ड्यूटी ऑल्सो टू एक्सपोज इट। आप इसको चैनल्स पे चलाइए, एक्सपोज करिए, द पीपल शुड नो एंड द कंसर्न ऑफिसर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस शुड बी बुक्ड फॉर सच काइंड ऑफ एन एक्ट।